हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई नो आज मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड किया है। सॉरी फॉर द डिले इन वीडियोस, बट दिस डिसकॉन्टिन्यूटी रिमेन एज सच फॉर फ्यू मंथ्स बिकॉज आई ऑल्सो बिजी इन माई स्टडीज़ सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरी वेरी स्कोरिंग एंड ट्रेंडिंग पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं आपको एक एक पॉइंट जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट है वो सब बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप BSc के स्टूडेंट हो, MSc के हो या फिर CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट लेक्चर ऑन IR. So, infrared spectroscopy. First of all, what is spectroscopy? Spectroscopy is simply the interaction of matter with radiation, and this interaction may cause absorption, emission, scattering, and after that we get a spectra. This is spectroscopy. In infrared spectroscopy, it gives us information about structure of compound, and generally it is used for determining functional group present in compound. Functional groups, different functional group lies at different values in the IR region. So with the help of these different values we will find out that which functional group is present in our compound. Here are many of the functional group values which we have to learn. In IR spectroscopy, graph is between intensity or percent transmittance and between wave number. This is wave number. So position of absorption in IR region can be expressed in terms of lambda. लैम्डा की टर्म्स में अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो इसकी वैल्यू जाती है 2.5 म्यू एम माइक्रोमीटर से 25 म्यू एम. ओके, बट अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यूज़ जो है वो बहुत कम है, यानी अगर पीक्स इसमें ड्रॉ किए जाएँ तो वो आपस में ओवरलैप करेंगी. ठीक है, तो जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो बहुत अच्छे से हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई वी टेक हियर mu bar. This is wavelength. Lambda is equal to 1 by mu bar. So mu bar unit is per centimeter, because if lambda is equal to 1 by mu bar is equal to 1 upon lambda, and lambda unit is centimeter, so mu bar unit is per centimeter. So convert these lambda values into per centimeter. So take here reciprocal of these lambda wavelength values, 1 by 2.5 to 1 by 25, convert it into centimeter. So wave number values come here from 400 to 4000 per centimeter, and between these 500 to 1500 per centimeter values lies in fingerprint region, and from here to here values lies in functional group regions. All functional group values lies between 1500 to 4000. Okay, so why we take here wave number? Because wave number have direct relation with our energy. Energy is equal to h nu. Nu is frequency, and frequency we know is equal to c upon lambda, and lambda is the reciprocal of wave number. So energy is indirectly directly proportional to wave number. Okay, so absorption in the IR region occurs due to excitation of molecule from lower to higher vibrational level. Okay, so for IR active molecule, जनरली क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है दैट मॉलिक्यूल हमें कोई दे दिया जाता है और पूछते हैं कि ये IR एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है. सो IR एक्टिव होने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें चेंज इन डायपोल मूवमेंट होना चाहिए, यानी कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट वहाँ पे होना चाहिए. फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पे कोई ना कोई चेंज इन परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगा. यहाँ पर भी है परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगा, यहाँ पर भी होगा. तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर चेंज इन डायपोल मूवमेंट हमें शो हो रहा है, वहाँ उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं IR एक्टिव. फॉर एग्जांपल दिस इज एल्काइन, अल्केन, यहाँ पर क्या है सिमिलर कार्बन कार्बन है, तो कोई भी चेंज इन डायपोल मूवमेंट नहीं है. सो दीज molecules are IR inactive. So for IR active molecule must have change in dipole moment. So friends, यहाँ पर वेव नंबर की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जो कि आपको लर्न करनी है. IR में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो यही है कि हमें इन वैल्यूज़ को लर्न करना है, बिकॉज वैल्यूज़ अगर आपको लर्न नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे. सो देखिए
CH स्ट्रेचिंग, यहाँ पर अगर हम बात करें CH स्ट्रेचिंग की, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है ये कार्बन, डबल बॉन्ड से है, सिंगल बॉन्ड से है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या है 3300, 3100, 3000। सिमिलरली यहाँ पे CC स्ट्रेचिंग की बात करें तो इसकी वैल्यूज़ इस तरह से लाई करेंगी। ये वैल्यूज़ आपको लर्न कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वीडियो में, बिकॉज इसमें एक कंसेप्ट यूज़ होने वाला है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू डबल बॉन्ड के लिए ज़्यादा क्यों है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए उससे ज़्यादा क्यों है। OH स्ट्रेचिंग की अगर बात करें, अगर हमारे पास फ्री OH प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू होगी 3600, बट अगर वो H बॉन्डिंग वहाँ पे इन्वॉल्व है, इंट्रामोलिक्यूल है या इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, तब उसकी वैल्यू यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी। तो जो H बॉन्डिंग है वो म्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, ओके। ऐसे ही NH स्ट्रेचिंग की बात करें, 1 डिग्री अमाइन में 3300, 3400 होगी, 2 डिग्री अमाइन में 3100, 3500 होगी, ठीक है। CO स्ट्रेचिंग में एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स, इनकी वैल्यूज़ हायर होती हैं। देखिए 1700 से 1725, एस्टर्स में 1735 टू 1750, अमाइड्स में 1650 टू 1680। ऐसे ही एसिड हैलाइड्स की वैल्यू जाती है अबव 1800। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। सो फंडामेंटल वाइब्रेशंस को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखिए जो एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो कभी भी बहुत रिजिडली हेल्ड नहीं होते, यानी उनमें कुछ ना कुछ मोमेंट रहता ही रहता है। जैसे हम इसको लेके चल सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग है, सपोज कोई स्प्रिंग है, उससे हमने बॉल्स को अटैच किया है, ये हमारे बॉल्स हैं और ये कोई स्प्रिंग है। बॉल्स को हम लोग यहाँ पे जो एटम्स हैं उनको बॉल्स मान रहे हैं और जो स्प्रिंग है वो हमारा है केमिकल बॉन्ड। तो जैसे हम इसको स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं और ट्विस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती हैं वो 2 टाइप्स की होते हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग मीन्स द लेंथ ऑफ बॉन्ड में बी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी हम उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं, बट द एटम्स रिमेन इन सेम बॉन्ड एक्सिस, यानी उसी बॉन्ड एक्सिस के थ्रू हम उन एटम्स को कंप्रेस कर रहे हैं या फिर एक्सपेंड कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेचिंग। सेकेंड इज बेंडिंग, पोजिशन ऑफ एटम्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। सपोज हम इसको इस तरह से कुछ बेंड कर देते हैं तो जो एटम्स की पोजीशन है वो अपने ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस में नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी, है ना। सो जो उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ होती हैं वो स्ट्रेचिंग के लिए ज़्यादा होती हैं एज़ कंपैरिजन टू बेंडिंग, बिकॉज अगर हम किसी भी एटम्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कंपैरिजन टू उसको बेंड करने में। सो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी बेंडिंग के कंपैरिजन में और ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर अब्जॉर्प्शन शो करेगा। सिमिलरली स्ट्रेचिंग इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सो अगर हम बात करें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की तो इसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं उनके बॉन्ड्स को या तो हम स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे, बहुत साइमल्टेनियसली स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। जैसे कि यहाँ पे इसको हमने दोनों को साइमल्टेनियसली स्ट्रेच किया है। ऐसे ही असिमेट्रिक में क्या होता है, एक को स्ट्रेच करेंगे तो दूसरे को कंप्रेस करेंगे, तो इनकी वैल्यूज़ में जो डिफरेंस आ जाता है, असिमेट्रिक के केस में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो हायर होती है एज कंपैरिजन टू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल अमाइंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिमेट्रिक, इसकी अगर हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग लें तो वैल्यू होती है 3300, बट असिमेट्रिक के केस में वैल्यू जाती है 3400 तक। नाउ बेंडिंग, in bending we have 2 types, in plane, out of plane. In plane there is 2 types, scissoring, rocking, out of plane, wagging, twisting. ऐसे सीजरिंग में, सीजर तो आप सभी ने यूज़ करी है, तो सीजर इस तरह से होती है, ठीक है। यानी ये 2 ब्लेड्स हैं सीजर के, तो या तो ये दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं या फिर दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही होता है सीजरिंग में, या तो दोनों एटम्स अंदर की तरफ आएंगे या फिर दोनों बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। रॉकिंग में क्या होता है, दोनों एटम्स एक ही तरफ मूव करेंगे, आइदर लेफ्ट और राइट। बट इन वैगिंग वी हैव सिमिलरली 2 एटम्स, ओके। तो इस तरह से एटम्स होते हैं, दोनों
दोनों आउट ऑफ प्लेन जाएंगे या फिर इन द प्लेन आएंगे, ठीक है, यानी दोनों आउट ऑफ प्लेन जाएंगे या फिर इन द प्लेन आएंगे। और ट्विस्टिंग में क्या होता है, अगर एक आउट ऑफ प्लेन जा रहा है तो दूसरा इन द प्लेन जाएगा, इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से ट्विस्टिंग में एक आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो दूसरा इन द प्लेन रहेगा, और इसमें दोनों अगर या तो दोनों आउट जाएंगे या फिर दोनों इन आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती हैं। मेनली आपको यहाँ पे लर्न रखना है कि जो स्ट्रेचिंग की वैल्यू होती है वो बेंडिंग से ज़्यादा होती है, और इनकी जो टाइप्स हैं यहाँ पे असिमेट्रिक की वैल्यू सिमेट्रिक से ज़्यादा होती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ NO2, फॉर सिमेट्रिक इट हैज़ this value, for asymmetric it has this value, so asymmetric value is higher than symmetric value. Next is vibrational frequency from Hooke's law. This is very very important. ये रिलेशन ऐसा है कि इससे आप पूरी IR के जो मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन हम करने वाले हैं अभी फर्दर, सब का कंपैरिजन इसी के बेसिस पर होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई √k/μ। तो k क्या है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट, के है यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट, म्यू है रिड्यूस्ड मास। सो अगर हम इसको ले वेव नंबर की फॉर्म में तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर होता है म्यू अपॉन सी। तो म्यू वेव नंबर इज इक्वल टू 1/2 पाई c/μ। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वेव नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स कांस्टेंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के, ठीक है। यानी कि जितने ज़्यादा हमारा जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी वेव नंबर की। यहाँ से हम लोग सभी वैल्यूज़ के कंपैरिजन को देख सकते हैं, जैसे कि इनमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। वी नो वेरी वेल ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड विच इज़ फर्दर मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। सो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा उसका फोर्स कांस्टेंट यानी k होगा और उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी वेव नंबर की, ठीक है। तो इस वजह से जो C सिंगल बॉन्ड की वैल्यू होती है वो होती है 1100, इसकी होती है 1650 और यहाँ पे होती है 2150। और वी कैन से मोर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड मोर इज़ द वैल्यू ऑफ वेव नंबर। जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा हमारे पास वेव नंबर होगा। इसी तरह से हम लोग एक एक की वैल्यूज़ का कंपैरिजन अभी करेंगे, जो मैंने आपको वैल्यूज़ दिखाई थी कि आपको लर्न करनी है। तो यहाँ पे इसका कंपैरिजन हो चुका है, ठीक है, कि यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है, बिकॉज इसका फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डबल से और सिंगल बॉन्ड से। सो दैट्स वाई वैल्यू ऑफ ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग इज 3300, फॉर डबल बॉन्ड इट इज़ 3100, फॉर सिंगल बॉन्ड इट इज़ 3000। सो जो ये फॉर्मूला है इससे हम लोग कैसे बता पाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर हमारे पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड मतलब अब्जॉर्प्शन बैंड की जो पोजीशन है वो किसके लिए किस केस में ज़्यादा होगी और किस केस में कम होगी। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई c/μ। यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, मास है, ठीक है। सो फोर्स कांस्टेंट का मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, ठीक है, बिकॉज उतना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। सेकेंड इज मास ऑफ एटम्स। अब मास को देखो, ये है रिड्यूस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जितना ज़्यादा मास होगा रिड्यूस मास भी उतना ही ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, यानी फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी रिड्यूस मास के। सो मास ऑफ एटम लोअर द मास, लोअर द रिड्यूस्ड मास एंड हायर द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, और सिमिलर रिलेशन हमने यहाँ पे वेव नंबर के लिए निकाला था। तो जनरली सभी बुक्स में जो है इसको वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी ही बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक हमारे पास यहाँ पे है OH और एक है OD, ये आइसोटोप है इसका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है H से। तो अगर मास ज़्यादा है तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी एज कंपैरिजन टू इन OH।
थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड इज टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं। तो मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, जो कि है स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। कि स्ट्रेचिंग के केस में वैल्यू ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी की, और असिमेट्रिक के केस में ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू सिमेट्रिक। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड को। सो फ्रेंड्स, अभी हम जो ये फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको एज सच लर्न करने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज जब हम लोग, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, तो आपको पता चलेगा कि इनका यूज़ कैसे है और किस तरह से हम लोग इनको कंपैरिजन करके निकालते हैं कि किस मॉलिक्यूल में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी और किस में कम होगी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट फैक्टर्स विच अफेक्टिंग इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड। फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। So concentration of sample is simply related to its intensity value, because higher the concentration, higher the value of intensity. For example, in nonane we have 9 carbon atoms, so here is more concentration, so intensity of nonane is higher than that of propane, because in propane we have 3 carbon atoms and in nonane we have 9 carbon atoms. Second factor is magnitude of dipole moment. Higher the dipole moment change, stronger the absorption, higher the intensity. जितना ज़्यादा dipole moment में change होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी इंटेंसिटी की। जैसे यहाँ पे हमारे पास डाइपोल, कुछ ना कुछ डाइपोल तो है, ज़ीरो तो नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ डाइपोल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इसकी वैल्यू जाती है 1640 पर सेंटीमीटर। सो दैट्स वाई इट इज़ IR एक्टिव, बिकॉज इन द मॉलिक्यूल्स इन विच वी हैव permanent dipole moment or a particular dipole moment value, then these molecules are IR active. Now look at this example. This is CH CH CH. So चारों साइड्स में सिमिलर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। स्ट्रेच भी करेंगे तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे म्यू डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। दैट्स वाई इट इज इंफ्रारेड इनएक्टिव, okay, because here is no permanent dipole moment, no change in dipole moment, that's why it is infrared active. So intensity इन्हीं दो factors पर depend करेगी, concentration of sample and magnitude of dipole moment. So next we have is overtones. Overtones appear at twice, 3 times the wave number or frequency of fundamental vibration. If the frequency of fundamental vibration is mu bar, then frequency of overtone is 2 mu bar or 3 mu bar. Okay, it is simply the twice or 3 times the wave number of fundamental vibrations. Now what is fundamental vibration and what is overtone? So हमने ये एक लिया है vibrational levels. अगर हम लोग जाते हैं, this is ground state vibrational level. So अगर हम मूव कराते हैं, जंप कराते हैं इसको 0 से 1 लेवल तक, 0 to 1 ground state to first excited level, this is fundamental vibration. Or either we move it from 0 to 2 or 0 to 3, 0 to 2 or 0 to 3 level, then these are overtones, or it may be shown as 2 mu bar or 3 mu bar. So this is first overtone and this is second overtone, ठीक है। अगर हम मूव कराते हैं 0 से फर्स्ट लेवल में, वो होता है फंडामेंटल वाइब्रेशन। 0 टू सेकंड में जाएंगे या 0 टू थर्ड में जाएंगे, वो होता है हमारे पास ओवरटोन्स, ठीक है। सो जो इंटेंसिटी होती है ओवरटोन की, वो जनरली लेस होती है इंटेंसिटी ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो हमारे पास बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वो क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं लोअर लेवल में हमेशा ज़्यादा होते हैं फॉर अ गुड स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे लोअर ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अगर हम इसको जंप करा रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जंप कर पाएंगे एज कंपैरिजन टू सेकंड और थर्ड, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को, कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मूव कर पाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और यहाँ पे उससे कम करेंगे और यहाँ पे उससे भी कम मूव करेंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी और इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। सो फंडामेंटल वाइब्रेशन के केस में मॉलिक्यूल्स का एक्साइटेशन ज़्यादा है, दैट्स वाई फंडामेंटल वाइब्रेशन हैज़ मोर इंटेंसिटी वैल्यू as comparison to intensity of overtones, because molecules in the lower level higher and higher it excite,
फॉर एग्जाम्पल इफ फंडामेंटल पीक एट, फंडामेंटल की पीक अगर होगी 500/सेंटीमीटर पे, तो ओवरटोन की पीक कहाँ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई, यानी या तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से करेंगे, उससे कुछ ना कुछ हायर ही जाएगी वैल्यू। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओवरटोन की हमेशा ज़्यादा रहेगी, 2 टाइम्स रहेगी या 3 टाइम्स रहेगी फंडामेंटल वाइब्रेशन के, बट जो इंटेंसिटी होती है ओवरटोन की वो हमेशा कम रहेगी फंडामेंटल वाइब्रेशन से। नेक्स्ट इज फर्मी रेजोनेंस। सो ये मैं लाइंस इसलिए राइट कर देती हूँ ताकि आपको रीड आउट करके थोड़ा क्लियर हो जाए दैट व्हाट एक्चुअल द टॉपिक इज। इफ एनर्जी ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन लाइज क्लोज टू दैट ऑफ ओवरटोन, अगर जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है उसकी एनर्जी कुछ क्लोज होती है ओवरटोन के, तो क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे फंडामेंटल वाइब्रेशन से ओवरटोन वाइब्रेशन में, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल वाइब्रेशन की एनर्जी ज़्यादा होती है, बट अगर वो कुछ क्लोजनेस है ओवरटोन के तो वो कुछ एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र कर देता है ओवरटोन को। तो एनर्जी ट्रांसफ़र करने से क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है ओवरटोन की वो इंक्रीज़ हो जाती है और इंटेंसिटी जो फंडामेंटल वाइब्रेशन की होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। एंड दिस कपलिंग बिटवीन फंडामेंटल एंड ओवरटोन इज़ Fermi resonance. So this coupling in which fundamental vibration transfer is its energy to overtone is called Fermi resonance. So our next topic is factors affecting vibrational frequency, and it is very important in IR because all IR spectroscopy values based upon these 2-3 factors. First is resonance effect. रेजोनेंस इफेक्ट कैसे अफेक्ट करता है हमारी वाइब्रेशनल वैल्यू को, देखिए जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे रेजोनेंस शो कर सकता है ये, बिकॉज एक डबल बॉन्ड है, यहाँ मूव करेगा, इसकी मूवमेंट यहाँ होगी, ऐसे यहाँ मूव करेगा तो ये यहाँ करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस शो कर रहे हैं, यानी कंजुगेशन में है। कंजुगेशन लोअर्स द फोर्स कांस्टेंट बिकॉज C डबल बॉन्ड O एक्वायर सिंगल बॉन्ड करैक्टर। तो इसको आप कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे हमें स्ट्रेचिंग किसकी देखनी है, CO बॉन्ड की, ठीक है। तो CO बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, मानते हो, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे रेजोनेंस आता है यानी कंजुगेशन ये शो करता है, तो इसकी मूवमेंट होती है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अगर मूवमेंट होगी तो ये डबल बॉन्ड करैक्टर जो है उसमें कुछ तो डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है, डिक्रीज होगी इसकी डबल बॉन्ड, यानी ये कुछ हाफ सिंगल बॉन्ड करैक्टर को एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड करैक्टर आएगा तो बॉन्ड वीक होगा, फोर्स कांस्टेंट भी वीक होगा, दैट्स वाई वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिक्रीजेज। सो रेजोनेंस इफेक्ट सिंपली ये बताता है कि कंजुगेशन की वजह से हमारा जो CO बॉन्ड है वो प्रॉपरली डबल बॉन्ड करैक्टर को एक्वायर नहीं कर पाता, वहाँ पे कुछ सिंगल बॉन्ड करैक्टर भी आ जाता है, तो इस वजह से जो उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे देखिए जैसे बिना कंजुगेशन की वैल्यू ये थी, बट जब कंजुगेशन आता है तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ऐसे ही इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, CSIR नेट के लिए लगा लो, इस टाइप के एग्जाम्पल्स बहुत वहाँ पर पूछे जाते हैं, इनमें आई थिंक 1-2 तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कंपैरिजन हमें करना है इन दोनों के बीच, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही साइन लगा के रखा है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वेव फ्रीक्वेंसी के एज कंपेरिजन टू दिस, बिकॉज हेयर इज डबल बॉन्ड, सो हेयर इज कंजुगेशन एंड कंजुगेशन लोअर्स द वैल्यू ऑफ म्यू बिकॉज CO बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, तो यहाँ पे आप देखिए किस बेसिस पर आप लोग कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कंजुगेशन शो करेगा इस तरह से, यहाँ पर भी ऐसे होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है, तो इस साइड से भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आएगा, ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट केस में ये इधर भी कंट्रीब्यूट करेगा बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब देखो जितना ज़्यादा O लोन पेयर कंट्रीब्यूट करेगा ये इतना ज़्यादा यहाँ पे कंजुगेशन होगा और उतना ही बॉन्ड वीक होगा। तो अब हमें चेक करना है कि किस केस में कंजुगेशन ज़्यादा है ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये इधर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इधर भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, बिकॉज डबल बॉन्ड है,
तो ये 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर ये 50% इधर कर रहा है तो 50 इधर कर रहा है, यानी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए ओ भी इधर ही कंट्रीब्यूट करेगा अपना 100%, और डबल बॉन्ड जो है वो भी इसके पास है तो ये भी अपना 100% इधर कंट्रीब्यूट करेगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ की वैल्यू यहाँ पे बहुत इसकी स्ट्रेंथ बहुत डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दोनों तरफ से है। यहाँ पे देखिए अपना 100% इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, यहाँ पे, बिकॉज इसको इधर भी कंट्रीब्यूट करना है और इधर भी करना है। तो यहाँ पे 50% कंट्रीब्यूशन है, तो कंजुगेशन उतनी कम होगी और बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। तो दैट्स वाई वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हायर इन द केस ऑफ फर्स्ट। और यहाँ पे दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन है तो बी की वैल्यू तो सबसे कम जाने वाली है, और यहाँ पे ये आएगा सेकेंड नंबर पे सी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आप कर सकते हैं, खुद से ट्राई करिए एक बार वीडियो पॉज करके। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, इसका कंट्रीब्यूशन इधर जाएगा, डबल बॉन्ड का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का 100% कंट्रीब्यूशन, सिमिलरली 50% कंट्रीब्यूशन इधर होगा और 50% इधर होगा। तो कंट्रीब्यूशन सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे। सी की वैल्यू सबसे हायर जाएगी, यहाँ पे दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन है तो इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, और सेंटर में हमारे पास आएगा बी कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए एक में जो Cl है हमारे पास वो एक्सियल पोजीशन पे है और एक में इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या है, Cl और O के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से जो CO बॉन्ड ये इससे दूर जाएगा, तो CO बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, और अगर CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ म्यू इज ऑल्सो इंक्रीजेज। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको कोई डाउट अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। और वन मोर थिंग गाइज, पहले मैं आपको प्लेन शीट पे कराती हूँ, बट आज मैंने ये लाइंस वाली शीट यूज़ की है, तो अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं प्लेन शीट पे आपको फर्दर कराऊंगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज H बॉन्डिंग विच ऑल्सो अफेक्ट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वैल्यू। सो H बॉन्डिंग से क्या होता है, जो वैल्यू होती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वो डिक्रीज होती है, डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, सो H बॉन्डिंग से वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है। देखिए ये हमारे पास कोई मिक्सचर है, जैसे यहाँ पे हमारे पास R अल्कोहल ग्रुप्स पड़े हैं, इनके बीच H बॉन्डिंग होगी। अगर यहाँ पे H बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तो OH का जो बॉन्ड होगा क्या होगा, वो लेंथ ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा ना। तो अगर इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी OH बॉन्ड वीक होगा। अगर OH बॉन्ड वीक होगा तो फोर्स कांस्टेंट भी कम होगा, फोर्स कांस्टेंट कम होगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, इस वजह से H बॉन्डिंग आने से हमारे पास डाउनवर्ड शिफ्ट जाता है, वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। अब जो H बॉन्डिंग है वो हमारे पास दो तरह से होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर जो एक ही मॉलिक्यूल के बीच होती है, जैसे यहाँ पे है मॉलिक्यूल के बीच ही हो रही है ना, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, यानी इन द मॉलिक्यूल नहीं होती, आउटसाइड होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हमें ब्रॉड बैंड्स देता है और इंट्रामॉलिक्यूलर शार्प बैंड देता है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने वैल्यूज आपको लिखवाई थी, वहाँ पे फ्री OH की वैल्यू थी 3600 पर सेंटीमीटर, जबकि अगर इंट्रा मॉलिक्यूल है तो उसकी वैल्यू होती है 32 से 33 और इसकी जाएगी 33 से 3400। बिकॉज H बॉन्डिंग आने से जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो डिक्रीज कर रही है, और H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है इंटरमॉलिक्यूलर के केस में, इंट्रामॉलिक्यूलर के केस में, बिकॉज यहाँ पे H बॉन्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे ये एग्जांपल हमारे पास है, देखिए इसमें तो हमारे पास कौन सी है, इंट्रामॉलिक्यूलर है, और यहाँ पे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेरिजन टू इंटर, दैट्स वाई इट्स वैल्यू इज लेस देन दिस। ठीक है, जितनी ज़्यादा इफेक्टिव H बॉन्डिंग होगी उतनी कम हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी।
अब एक फैक्टर आता है यहाँ पे कंसंट्रेशन या फिर डिल्यूशन का, कि अगर हम अपने मिक्सचर को डिल्यूट कर देते हैं तो उससे एच बॉन्डिंग पर क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए, अगर हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की, तो ये विद इन द मॉलिक्यूल है, यानी अगर हम मिक्सचर को कितना भी डिल्यूट करें, विद इन द मॉलिक्यूल वाले पे कोई इफेक्ट नहीं डलने वाला एच बॉन्डिंग पे, ठीक है। डिल्यूशन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं डलने वाला। सो इंट्रामॉलिक्यूलर के केस में नो इफेक्ट ऑन डिल्यूशन, बट इन द केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, बिकॉज ये तो हमारे पास सॉल्वेंट के साथ होनी है, तो जितना डिल्यूशन होगा उतनी कम एच बॉन्डिंग होगी, और अगर एच बॉन्डिंग उतनी कम होगी तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो इंटरमॉलिक्यूलर के केस में अगर हम डिल्यूशन करते हैं तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ओके, डिल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता इंट्रा पर, इंटर पर इसका इफेक्ट होता है, बिकॉज डिल्यूशन की वजह से एच बॉन्डिंग कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। सो here are some examples related to H bonding. So first example is this. So अब पहले एग्जाम्पल में अगर देखें तो क्या है, देखो इसमें OH ग्रुप अटैच है। अगर हम इसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग शो करेगा। यहाँ पे OH ग्रुप है बट साइड में बल्की ग्रुप्स अटैच हैं। बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, ये कोई भी एच बॉन्डिंग शो नहीं कर पाएगा। सो दिस इज फ्री OH. In this there is intramolecular H bonding within the molecule. So we know intermolecular H bonding is more effective than intramolecular H bonding. This is free OH and value of frequency is higher in the case of this. After that A, after that C. Okay. Now next example, in this there is no H bonding, but in this there is H bonding present. So value of this is higher than that of this one molecule. Another factor is inductive effect. In inductive effect, if we have a molecule attached with electron donating groups, then this electron donating group increase in the bond length of CO. So with increase in bond length, force constant decreases and value of frequency also decreases. For example, this यहाँ पर दो डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हैं, इस वजह से क्या होगा, ये डोनेशन देंगे, यहाँ पे सी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का इंक्रीमेंट होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड वीक होगा, फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होगा और वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। अनदर फैक्टर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने से फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, इनका कंपैरिजन हमें करना है, ठीक है। सो देर इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज, एंड दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन है, कंजुगेशन होने की वजह से ये बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और इसकी वैल्यू जाएगी लोअर। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा O से। तो ऐसे में जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हायर होगी, और ये वाली मिडिल वैल्यू होगी इसकी, बिकॉज यहाँ पे तो कंजुगेशन है तो इसकी वैल्यू तो लोअर होगी, तो सेकेंड नंबर पे हमारे पास ये लाई करेगा। नेक्स्ट इज if we compare between ester and aldehyde and ketone, value of ester is always higher than that of aldehyde or ketone. This is aldehyde, this is ketone, and this is ester. So ester value is higher than ketone. So what's the reason? Reason is here, this show conjugation, this O show conjugation here, and here is double bond character, this O get positive charge, here negative charge. So see carefully, this is C double bond O and this is also C double bond O. So here two C double bond O formed in ester. It strengthens the bond and also increase the value of frequency. That's the reason why the value of frequency in the case of ester is higher than that of aldehyde and ketone. So our last factor is ring size and it's very important factor. इसको एक बार ज़रा ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड,
ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कंपेयर करना है वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी को तो किस तरह से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है SP, SP2, SP3। इसमें एस करेक्टर होता है 50%, 33.3, 25%। तो SP के केस में एस करेक्टर ज़्यादा है एंड वी नो SP, इन SP वी हैव मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ। SP जैसे होता है ना C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे SP हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यानी जितना ज़्यादा S करेक्टर होगा उसकी उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। अब इस बेसिस पे हम इसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर अगर हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप इसके ऊपर अटैच्ड है। इस रिंग के अंदर हायर स्ट्रेन है ड्यू टू स्मॉल रिंग। एंगल इनसाइड एंगल होगा 60 डिग्री, तो आउटसाइड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। अब जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस करेक्टर के। आउटसाइड में अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो यहाँ पे एस करेक्टर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, आउटसाइड एंगल मोर इफ इनर एंगल इज लेस। अंदर का इनसाइड एंगल जितना कम होगा आउटसाइड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस करेक्टर भी ज़्यादा है, और अगर एस करेक्टर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, बिकॉज दीज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इफ मोर द एस करेक्टर एंड मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो हायर। Similarly, these two comparisons here, lesser the size of ring, more is the value of frequency. Reason remains same as I explained. Okay, so guys, these two examples ऑर्डर मैंने इनके लगाए हुए हैं, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स कर लेंगे। सो आई होप मेरा ये IR का लेक्चर आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ पूरे लेक्चर को पहले ध्यान से सुनिए, फिर हो सके तो किसी बुक से इसको रीड आउट करिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करिए, तब जाके आपको पूरा जो IR का ये टॉपिक है कोई भी कंपैरिजन आप इजीली कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।